नाम है मेरा कन्वरलाल। बॉलीवुड में ना बहुत सारे लोग ना अपने बचपन को लेके मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं कि मैं लैंप पोस्ट के नीचे सोता था, मैं कुत्ते की कटोरी में दूध पीता था। ऐसा कुछ नहीं होता है। Okay, as a drinker, that's why I've never touched alcohol till date. Life's not going to be good to you, Ankit. Life's not going to be good to you. I used to wear a t-shirt which said I love Jitendra. Arey, I made himmat wala yaar. Come on. Yeah. लेडीज एंड जेंट्स, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन अगेन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। ये कहाँ सुना हुआ है यार? कहाँ सुना हुआ है ये? मैंने अपने बायो पे भी लिखा है, इंस्टाग्राम पे, मालूम है? सीरियसली? बिकॉज मैंने शुरू किया था 92-93 में, आपका होस्ट एंड दोस्त साजिद खान। इन कॉलेज व्हेन आई यूज्ड टू डीजे, तो वहाँ पे पोस्टर पे अपना नाम लिखा, होस्ट एंड दोस्त साजिद खान, ने जो अभी तक चल रही है। हाँ, तो मैंने जब यूट्यूब पे देखा बहुत सारे लोग आपका होस्ट एंड दोस्त ऐसे, आई विश आई हैड लाइक copyrighted it. One you should have. But it sounds good when you say it. Oh, thank you. I think you're a wonderful host. I've seen your shows. I think you're a wonderful host also. You have something very nice about you. I don't know what it is, but it is there. I've not been to a podcast. First of all, technically, this is not a podcast. Yeah. It's a vodcast. Oh, yes. This you were telling me about now that you have told me. It really makes sense. Because podcast basically audio होता है. Correct है. तो आप हाफ पैंट बनियान में बैठ के बाल खुजाते हुए बिना नहाए आप बात करते हो, क्योंकि आपकी खाली आवाज़ सुनाई में देती है और लोगों को लगता है कि आप 3-piece सूट में बैठ के एकदम जेंटलमैन की तरह बात कर रहे हो। ये वॉडकास्ट है, ये वीडियो कास्ट है। ये बात आपकी ठीक है। तो एक्चुअली बेसिकली आई थिंक ये फॉर्मेट ये है कि आई मीन इट्स लाइक अ मिक्स ऑफ रेडियो एंड वीडियो एंड देन you do whatever you want. That's why it's called a podcast, which but technically you're definitely right. It's called a podcast. Sajid Khan, how are you? Now after 2017 you're giving an interview or a podcast. You've been Vodcast. Vodcast. Thank you for correcting me. So I promised you that I would come on your show whenever you came. You came all the way to Mumbai. I know you coordinated with me and I'm here. I don't give up on my promises. पिछले 6-7 सालों में, 8 सालों में, especially when I came out of Big Boss last year, बहुत सारे लोगों ने, कुछ मेरे दोस्त भी हैं जिन्होंने मुझे वॉडकास्ट पे बुलाया, बट मुझे ऐसा लगा कि यार it doesn't make sense, yaar, seriously. Now that I'm doing my own stand-up comedy show, I'm starting my films, when I have a lot of things to talk about rather than just talk about my life. क्या होता है बॉलीवुड में ना बहुत सारे लोग ना अपने बचपन को लेके मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं कि मैं लैंप पोस्ट के नीचे सोता था, मैं कुत्ते की कटोरी में दूध पीता था। ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑफ कोर्स सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स तो होते ही हैं, सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स होते हैं। अब उस पे कितने जेन्युइन स्टोरीज होते हैं, कितने फेक स्टोरीज होते हैं, ये अपने को नहीं पता है, बट फारा एंड मी, आवर लाइफ हैज बीन समवेयर डॉक्यूमेंटेड फ्रॉम द टाइम पीपल स्टार्टेड गेटिंग टू नो अस, राइट फ्रॉम इंटरव्यूज, न्यूज़पेपर कटिंग्स टू मैगजीन्स। सो पीपल नो कि यार ये लोग फिल्म मेकर के बच्चे थे हु लॉस्ट ऑल हिज मनी, देन दे केम ऑन द रोड्स, and then that's how we struggled and we came up on our own. Yeah, ठीक बात है। आप लोग का it is documented as well, but you are pretty much born into the industry. Like you can. My father was a filmmaker, and I was growing up with the most successful writing team of all times in Bollywood. So I'll tell you, my mother, Parsi, we are half Parsis, Irani Parsis. Okay. Gujarati Parsis. हूँ कौन छू मने खबर नहीं। So Menka Irani. Her 2 sisters, Daisy Irani, Hani Irani. Correct. Superstar childhood में, बचपन में उन लोग रोल्स करते थे. They were like known as the Shirley Temples of India. Shirley Temple Hollywood की 40s और 30s में बहुत बड़ी superstar child artist थी. So Daisy auntie had become a superstar. Hani auntie also. Hani auntie got married to Salim Javed. Salim Saab was my father's very close friend. My father was a filmmaker who used to make films with Dara Singh, B-grade films. Okay. Black and white B-grade films. Like the टाइम पास मज़ेदार एक्शन फिल्म है, तो जब फारा पैदा हुई थी, माई फादर वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी गुड टाइम. जब मैं पैदा हुआ, ही गेव हिज फर्स्ट फ्लॉप. तो आई स्टार्टेड माई लाइफ विद अ फ्लॉप, बिकॉज ही मस्ट हैव थॉट कि यार अभी दूसरा बच्चा हो गया है, बेटा हो गया है, आई नीड टू एक्सपैंड,
I need to make bigger films. So my father said, I'm not going to make B-grade films anymore. I'm going to make a A-grade film. I tried to make a big film with Sanjeev Kumar. That film never worked because it never got made. आधी पिक्चर में संजीव कुमार भाग गया. Oh God, okay. My father lost all his money and technically all our तभी क्या होता था, कभी बैंक्स होते नहीं थे, स्टूडियोज नहीं थे. एक फिल्म मेकर अगर 10 लाख रुपए कमाता था तो 15 लाख अगली पिक्चर में लगा देता था. जेवर पेपर गिर भी रखे. अच्छा. गॉड, हाँ ऐसे ही होता था. दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. गॉट इट. फिल्म इंडस्ट्री को इंडस्ट्री का टैग 8-10-15 साल पहले मिला. इससे पहले नोबडी यूज्ड टू टेक द फिल्म इंडस्ट्री सीरियसली व्हेन मनी इज वर कंसर्न्ड. Okay. It was just glamour. My father lost all his money and we lost all our money, and then my father started drinking. He became an alcoholic and my parents got divorced and I went and stayed with my aunts. Now, Daisy auntie, my mother's other sister, उनकी marriage हुई थी के शुक्ला साहब के साथ. के शुक्ला साहब, one of the most prolific, successful writers of all times. के शुक्ला साहब की फिल्मों के बारे में आपको बताऊंगा, आप शॉक हो जाएंगे. आप लोग सब लोग भी शॉक हो जाएंगे. अमर अकबर, एंथनी, धर्मवीर, परवरिश, चाचा भतीजा, कुर्बानी, जहांबाज, इंसाफ, you name it. All the successful pot boilers, Manmohan Desai pot boilers were him. Yeah, के शुक्ला. दूसरी सिस्टर की शादी हुई जावेद, सलीम जावेद. Who doesn't know them? Right from Sholay to Diwar to Trishul to Kala Patthar to Kranti, all the films. Yeah. So somewhere as a child, I was shunting between, Farah and me were shunting between our Parsi household and my father's household. 2 days, 3 days, 2 days, 3 days, 2 days, 3 days. Got it? I was getting very confused. Of course, I can imagine. I can imagine. You know कि कैसा आपका mind frame हो उस time पे. के अंकल के यहाँ जब बैठता था बचपन में तो गीता का पाठ पढ़ता था, सुनता था. मेरे एक मामा, he from ईरानी, he converted to Muslim. Correct. तो उनके साथ बैठ के मैं कुरान सुनता था. My nanny, my mother, she converted and she became Christian. Wow. Okay. So I used to go to the church with her. Yeah. This is a 7-year-old child you're talking about. Huh? One day I was very confused. I asked my father, I said, Papa, मेरा religion क्या है? So he got a little shocked. Okay, he kept his drink down because he used to drink for morning. अच्छा, okay. Depression. तो he said कि देख सामने वो दिखता है तेरे को लीडो सिनेमा. हाँ, लीडो सिनेमा. He said, वो तेरा religion है. This has been fed to me as a 7-year-old child. It sounds Oh यार, what a line. I mean, कहने वाली अगर आप देखो तो वो. I said, Papa, am I Hindu, Muslim, Parsi, Christian, Punjabi, what am I? He said, वो सारे लोग वहाँ पे बैठते हैं साथ में और सारे लोग साथ में ताली मारते हैं, साथ में हंसते हैं, साथ में सीटी मारते हैं, साथ में डरते हैं. That is your religion. Now, as a 7-year-old child, मेरे दिमाग में ये बिठा दिया गया था कि for me, my religion is cinema. And it's been almost 43, 44, 45 years later. I think that's the greatest religion for me, my cinema. I don't think beyond cinema. To Hindu, Muslim, Sikh, Isai, मैं सबके घर का हूँ. मुझे सारी भाषाएं समझ में आती है. I grew up in Nehru Nagar Society, Shivaji Nagar, where जहाँ पे एक गुजराती, एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक पारसी, एक क्रिश्चियन, तो सबके घरों में सारे त्यौहार मनाए. Farah and me, that is why we are actually all India. And I grew up on Manmohan Desai line of thinking. Are you understanding, Ankit? So my logic was, मेरी जिंदगी के लिए मेरा यही था कि यार, nothing greater than cinema. Cinema is the greatest of all things. It's the greatest invention of all times. तो फिल्मी, that's it. हम फिल्म इंडस्ट्री वालों की एक बात है, जब बात करना शुरू करते हैं ना तो बंद नहीं करते. सही जगह पे आ गए हो. उनको ऐसा लगता है कि लोग और सुनना चाहते हैं. तो सूर्य के भी और and you know one thing I want to ask is तो अभी now के शुक्ला, you know, DZ, all these are very big names. From a outsider's point of view I'm talking about. जब इनके घर पे तो somewhere they are forgotten names also today. I mean, you know, people, the other day I met a couple of assistant directors and I was talking with them and I said, what about the cinema of Gurudat or Mehboob Khan? They did not know them. Something needs to be done on this though. No, you can't fight generations. No? You ask young Hollywood filmmakers today about Cecil B. DeMille and Stanley Kubrick, they won't know. ये मुझे भी नहीं पता. There you go. They won't know. They were some of the greatest filmmakers of all times. But that's okay. You have to keep. No, for greatest for me is Scorsese and all of. I mean, I'm just Fair saying. enough. Yeah, you know, fair for in enough. my eyes. Yeah, fair enough. So, fair enough. Which is so because I've obviously seen their work when I was growing up. But फिल्मों में क्या होता है ना, फिल्मों में समटाइम्स ना एज एन एक्टर और एज अ फिल्म मेकर ना, आपका बॉडी ऑफ वर्क आपके रेपुटेशन से ज़्यादा बड़ा हो जाता है.
मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैं ऐसा क्यों था जब अमिताभ बच्चन 1977 के बाद, लोग बोलते हैं कि 73 में वो सुपरस्टार बने थे, गलत बात है। He became a superstar in 1977 and then he gave the biggest hit of his career at that time in 1978, Muqaddar Ka Sikandar. So from 1978 till 1998, Amitabh Bachchan was numero uno, 20 years. But जब वो alternate cinema करने की कोशिश करते थे, वो पिक्चर फ्लॉप होती थी. Because he became a slave to his own superstardom. So they were accepting in one type of. So when you see a superstar Rajnikant, a superstar Amitabh Bachchan, or even a Shah Rukh Khan for that matter, I'm just giving an example, or Salman, Yeah. they are fighting their own shadows of superstardom. Okay. So Very you well can't put. see them in a tube light. You can't see them in a zero. Because they are, I understand what you mean. they will never be characters in a film. They will always be Salman Khan. They will always be Amitabh Bachchan. They will always be superstar Rajnikant. ठीक बात है, persona ज़्यादा बड़ा हो गया, सही बात है. डायरेक्टर्स के साथ भी वही होता है. अच्छा, ओके. कुछ डायरेक्टर्स समझ गया मैं. आपकी वेरी वैलिड पॉइंट है वैसे अगर देखोगे तो. एक बात बताओ, जब आप बड़े हो रहे होगे वैसे ऐसे हाउस होल्ड में, जावेद अख्तर, जोया अख्तर, फरहान अख्तर, योर कजन्स बाय द वे, नॉट Yeah. they are, right? Yeah. So you. But none of us knew what we were going to do. I don't think Zoya, Farhan, Farah, or me, or any of us for that. You met them quite often, like with. We grew up together. हाँ, We grew up together. क्या एजेंडा आइडिया क्या था? पता था फिल्म इंडस्ट्री में हो? और कुछ आता ही नहीं था यार. और कुछ आता ही नहीं था. Genuinely, मुझे ऐसा लगा था मैं डीजे बन जाऊंगा. डीजे किया था 6 डीजे पे मैं घुसूंगा, मेरे को जानना है डीजे का. 7 बट पहले मेरे को चाइल्ड हुड का बताओ थोड़ा. जब आसपास जब अभी जो फराह खान है, आई एम सेइंग बाय नेम बिकॉज आई एम गिविंग यू फ्रॉम अ थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू. अभी जो फराह खान है, अभी जो फरहान अख्तर, अभी जो जोया अख्तर है, नाउ देयर साजिद खान ऑफ कोर्स. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो यू डिडंट नो ना यार, ये बड़े होके कि एक हम पहले कोरियोग्राफी करेंगे, ये करेंगे और उसके बाद इधर जाएंगे. मेरे लिए और फारा के लिए क्या था ना, जब मेरे फादर की डेथ हुई 84 में, उस पर भी एक किस्सा है. वो किस्सा देखो बाद में कभी सुनाऊंगा, अभी सुना देता हूँ. ना आपकी मर्जी. तो मैं क्या करता था, मैं स्कूल बंक करता था और मेरे स्कूल का एक आई कार्ड होता था प्लास्टिक का. और स्कूल बंक करके मैं मंडे को सुबह जाता था 9 साढ़े 9 बजे कोई भी सिनेमा में, स्पेशली लीडो सिनेमा जो मेरे घर के सामने था. 4 रुपये 40 पैसा स्टॉल्स की टिकट, और एडवांस बुकिंग में फ्राइडे को जो पिक्चर आ रही उसकी टिकट खरीद लेता था 3 से 6 की. क्या बात. और वो टिकट को एकदम प्यार से, मतलब जैसे कोई सर्टिफिकेट मिला है गवर्नमेंट का, उसको ऐसे रखता था. आई हैव कलेक्टेड ऑल द टिकट्स ऑफ ऑल द मूवीज आई हैव सीन इन माय एंटायर लाइफ. डोंट टेल मी यू स्टिल हैव देम. Yeah, in my, I've kept them in like a safe place. All the tickets. Monday को टिकट खरीदी. Tuesday my father died. Okay. He's a drinker. That's why I've never touched alcohol till date. बहुत लोगों को मुझे ऐसे देखकर लगता होगा कि बहुत शराब पीता होगा. मैं सिर्फ ऐसा लगता हूँ, मैं पीता नहीं हूँ. हाँ. Tuesday he passed away. Alcohol. Sad day. वेडनेसडे मेरे को थोड़ा सा टेंशन आने लगा. आई एम 14 years old एट दिस टाइम कि टिकट का क्या करूँ मैं. पिक्चर का नाम था नया कदम. राजेश खन्ना, म्यूजिक बाय बप्पी लहरी, के राघवेंद्र राव, श्रीदेवी एंड पद्मिनी कोल्हापुरे. 84. अब क्या करूँ. थर्सडे को मेरे को और हाथ हिलने लगा कि मैं शुड आई गो टू सी द मूवी और नॉट. I just lost my father on Tuesday. मेरी फ्राइडे की टिकट है. मेरा बेस्ट फ्रेंड बचपन का राजेश साथी है, मेरा नेबर लाइक एन एल्डर ब्रदर. उसको मैंने बुलाया, ऐसे साथी घर आना यार. सामने एक ही कॉलोनी में रहते थे, तो घर पे आया. उसको मैंने टिकट बताई. मैंने क्या करूँ, इसे पागल हो गया क्या, अंकल की डेथ हो गई 2 दिन पहले और तू पिक्चर देखने जाएगा. आई सेड बट पापा वुड हैव वांटेड मी टू सी द मूवी यार. ही टोल्ड मी यार यू शुड ऑलवेज वॉच मूवीज ऑल द टाइम यार, व्हाट्स रॉन्ग. आई सेड ऑन द कॉन्ट्ररी ही विल फील हैप्पी. Go and see this movie. So he kept quiet. He said, अच्छा बता टिकट बता. He took the ticket and he tore it. I said क्या कर दिया तूने. He said पागल है क्या, you just lost your father और तू सोच रहा है पिक्चर देखने की. So वो माइंडसेट तो समझ गया. मेरे चाइल्डहुड का एक पहलू है जो मैं आज तक कभी सॉल्व नहीं कर पाया हूँ अंकित. कभी सॉल्व नहीं कर पाया हूँ कि मेरे दिमाग में वो बात सही थी कि गलत थी एज अ 14-year-old चाइल्ड. बिकॉज मेरे बाप ने मुझे 7 साल की उम्र पे सिखाया था देयर इज नो ग्रेटर थिंग इन द वर्ल्ड देन सिनेमा. और व्हेन ही पास्ड अवे, फ्राइडे को मैं वो फिल्म देखने जाऊं कि नहीं जाऊं, That's running through your head. एक गिल्टी फीलिंग आती है कि यार शिट आई लॉस्ट माय फादर ऑन ट्यूसडे और फ्राइडे को मैं बैठ के पिक्चर देख रहा हूं. बट आई डोंट नो, आई वाज 14 ईयर.
Yeah, I can understand. Maybe it's your way of dealing with it. One doesn't know. One doesn't know. But I can understand. See, there is. I mean, what you're saying in your story, जो मेरे को दिख रहा है ना, there is. I can understand. There is that sadness of losing a father, but there is this immense passion, which is still. I mean, which I can see now that I think it's just the love and passion of it. और कुछ आता नहीं है यार. तू बोलेगा अंडा बॉईल करने, शायद अंडा बॉईल कर सकता हूँ मैं. मैगी नूडल का एक पैकेट बना सकता दे ले. हाँ, तू कभी घर आते, आई कैन, मतलब मसाला डोसा, इडली विडली अपने हाथों से मैं ऑर्डर करके बुला सकता हूँ. मेरे को कसम से लगा बोलोगे शायद. लेकिन तू फिल्म मेकिंग के कोई भी एस्पेक्ट में मुझसे बात कर ले. फिल्मों के बारे में बात कर ले, फिल्म रिव्यूज के बारे में बात कर ले, अच्छी फिल्म, बुरी फिल्म, फ्लॉप फिल्म, हिट फिल्म, कौन से साल में कहाँ पे रिलीज हुई थी, कौन सी फिल्म कितना बिजनेस कर सकती है. तो आई You'll remember all that. एंड आई टॉक अबाउट न्यू फिल्म्स आल्सो. ट्रेलर देख के पता चल जाता है कि पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी. अच्छा, ऐसा क्या? हाँ, मैं आपको पता लग जाता नहीं, ऐसा नहीं. क्या होता है, अभी 4-5 साल से मैंने फिल्म बनाई नहीं, अब जाके बना रहा हूँ. तो व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार वेरी फास्ट एंड यू हिट अ बम्प और समटाइम्स यू गो ऑफ रोड और गाड़ी खराब हो जाती है, एंड देन यू हैव टू वेट. नो व्हाइल यू आर वेटिंग ओवर देयर ना, यू सी अ लॉट ऑफ अदर कार्स मूविंग. कोई फास्ट जा रही है, कोई इधर ऐसे ऐसे जा रही है, कोई बम्पी जा रही है, कोई रुक रुक के जा रही है, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है. तो आप रियलाइज करते हो कि रास्ते पे कहाँ कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ कहाँ पे लेफ्ट मार सकते हो, कहाँ राइट मार सकते हो. तो एज अ बाय स्टैंडर नो, इट हेल्प्स यू अ लॉट. Those 5 years have helped me a lot understand more or less what's going to work and what's not going to work. I mean, I'm not Nostradamus, but eventually I think क्या होता है, people are ending up making films sometimes for themselves. Okay. कि this is a story I have to tell. No. I believe that what story would you want to hear? Ultimately, we are selling the film for the audience. Audience, true. हाँ, ठीक बात है. Okay, yeah, commercial, yes. It's not commercial. Then? There is no such thing as commercial. Commercial होता क्या है? यार, eventually चीज in a way बिक रही है ऑडियंस को, right? नहीं. तो तू बोल रहा है कि जो छोटी पिक्चर होती है या स्लाइस ऑफ लाइफ पिक्चर होती है, उसकी टिकट नहीं बिकती है? बिकती है, बट जितनी एक बिकती है ना. बिकती है. अब वो कॉस्ट मत पकड़ के 1,000 रुपए की टिकट है, 200 रुपए की, बिकती है ना. हाँ, बिकती है. तो फिल्म मेकिंग 3 चीजों का मिश्रण है. जैसे कॉलेज में होता है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस. साइंस आपका टेक्निकल नो हाउ है, साउंड, लाइट, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग, साइंस. आर्ट, योर स्क्रिप्टिंग, योर डायलॉग्स, योर डायरेक्शन, योर एक्टिंग, दैट्स आर्टिस्टिक. और फिर आता है कॉमर्स, द प्रोडक्शन, द पैसा, मार्केटिंग, पिक्चर को कैसे रिलीज करना है, पिक्चर कितना बिजनेस करेगी तो ब्रेक इवन होगी, कितने में लॉस हो सकता है, कितने में प्रॉफिट हो सकता है. तो ये 3 चीजें, तो हर पिक्चर जो सिनेमा में आती है वो कमर्शियल पिक्चर. समझा मैं. अनलेस वो बोले टिकट खरीद लो, फ्री में लो. जो अभी 1-2 पिक्चर के साथ हुआ भी था, बाय 1 गेट 1 फ्री. ये हुआ था. ठीक है. मतलब आप रिमोट खरीदो, हम टीवी फ्री दे देंगे. ठीक बात. अच्छा चलो, ये ठीक है, ये मैं फिल्म्स के अंदर और मैं घुसूंगा. बट एक चीज़ बताओ, जब इतना एक्सेस था इंडस्ट्री में, आई एम श्योर यू हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स आल्सो. आई मीन at that point of time, why the DJing and why all of that? No. Was that struggle, or was that out of passion, or was when that? my father passed away, normally when parents pass away, sometimes they leave real estate or some money in the bank or some sort of papers for the children ki hamari property aapke naam pe will. My father left Farah and me with debts. I'm 14, she's 17, 18 years old at that time. We had a debt of some close to, at that time in 1984, close to around 3.5 lakh rupees, my father's. So we were shattered, Farah and me. We said, "Ki how will we pay? घर भी चलाना है." We went and spoke to those people कि थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे, monthly दे देंगे. Now Farah started dancing. She started a dance troupe. तभी हम लोग break dancing करते थे. I started doing comedy. शादियों में परफॉर्म कर रहा हूँ, मिमिक्री कर रहा हूँ मैं, संजय दत्त, रजनीकांत, जितेंद्र, ये सब कर रहा हूँ जहाँ से पैसा मिले, जहाँ से. मतलब संडे को कभी कभी बीच पे भी परफॉर्म किया है मैंने. क्या बात कर रहे हो यार? हाँ, सच बोल रहा हूँ. हाँ, मेरी लाइफ में एक ही था कि जितना पैसा आएगा थोड़ा राशन खरीदो घर के लिए और फारा को दो ताकि कर्जे कम हो, और थोड़े पैसे बचा के पिक्चरें देखते रहो. इतना पागल था मैं फिल्मों के बारे में. And we were the only house in that entire colony, Nagar,
which did not have a TV. अरे I didn't. We didn't have money. We didn't have a fan or a TV. We had a fan, but just one fan. So we both used to sleep in the hall, Farah and me. So it was you guys are, yeah, And you then- and Farah, man. हाँ तो नॉर्मली क्या होता है, when you don't have a choice, आपको काम करना है पैसे कमाने के लिए, कर्जे मिटाने के लिए, घर चलाने के लिए, तो आप करते हो काम यार. But I'm happy to say that somewhere we did it with a certain amount of dignity, and my mum, she insisted that we finish our education. And my mum was also working. She was working in Sea Rock Hotel. She was in charge of housekeeping, and she was staying separate from Farah and me. You know, because she had to go in the morning at 6 o'clock for a job and come back at 7:30 in the evening. You know, and we were staying in my father's house. So my mum is in Bandra. We are in Juhu. Weekends we used to meet to eat food together. It was little. So Farah and me were. That's how we became so close with each other. We were like almost. She's like a brother to me. Yeah. She started looking like a man more and more. Don't tell her I said that. Oh shit! It's on camera. Only when we here. Wow, यार, तो you guys are fighters, yeah. I mean, now that I hear. No. You grew up too fast, I feel. मतलब यार. like instantly in a way, अगर आप देखो तो यार. I mean, I don't want to keep going back there, but मैं आपको अपना Fighter नहीं. बता रहा हूँ मैं. I'm telling you ना, that sense of humor is what sees you through. Life's not going to be good to you, Ankit. Life's not going to be good to you. And a lot of people realize that during COVID, you know. You're here, you're gone. Yeah. That. Life's not going to be good to you. We did not have money to pay electricity for about almost 10 to 15 days. घर में बिजली नहीं थी यार. 5-6 साल का था मैं. कैंडल लाइट लगता था शाम को घर के लिए. और मैंने मम्मी को पूछा तो वी आर सो पुअर. तो मम्मी ने मेरे को बोला तो नो, वी आर वेरी रिच. क्योंकि हम कैंडल लाइट डिनर खाते हैं. कैंडल लाइट डिनर अमीर लोग खाते हैं बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके. हम एवरीडे कैंडल लाइट डिनर खा रहे हैं. So this is your. So She also has a sense of humor. Yes, मतलब- my mom has a better sense of humor than me and my sister. So my aunties and all. तो यही क्या ठीक है यार. लाइफ में प्रॉब्लम आती है. मूव ऑन. Very nice, yeah. और लोग एडवाइस दे सकते हैं. कोई हेल्प नहीं कर सकता है. हेल्प आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता. कभी लगा कभी वैसे मतलब ना मांगने में is not the right word. Of course, when my father passed away, I went to one of my relatives to ask for money for the funeral. We did not have money for the funeral. It was Salim uncle who gave money for the funeral. Salim uncle gave me money, Salman's dad. He gave me money for the funeral. Yeah. So, I'm just saying. But that's life. But क्या होता है, अब आप इसको ग्लोरीफाई करके बोलो देखो मैं ऐसा था. नहीं यार, ठीक है, मूव ऑन यार, हंसते रहो यार. दैट्स वन थिंग. दे कैन टेक अवे योर बेसिक amenities. They can take away your clothes, your money, your wallet. They can't take away your will to laugh, na? Is that? You know, I think we're all survivors, Ankit. Seriously, यार. अब तू जो कर रहा है, for example, I have a feeling your show is going to grow. Your channel is going to grow. I'm saying this, and the reason why I'm saying this also is because I've decided to come to this show. Now, the reason why it will grow, and you're fighting for it only, you're surviving only with other so many. I wouldn't call them your nemesis, or I wouldn't call them your enemies or frenemies, but there's so much competition on YouTube itself. Yes. So why would anybody want to see this? I'll tell you why. There's a reason why. Because in your show, the show is about the guests, not about you. And that is where you come up. चलो तो मेरी बीवी भी नहीं बोलती अच्छा मेरे बारे में किसी ने तो बोला मुझे तेरी बीवी ने फोन करके बोला इसके बारे में अच्छा बोल किसी और के से तो निकले. अच्छा एक बात बताओ, अच्छे डीजे थे वैसे? नहीं. क्या बजाते थे? फिल्मी डीजे था मैं. ब्रेक डांस म्यूजिक बजाता था. फर्स्ट थोड़ा सा अपने आप को पैटर्न द बैक कर सकता हूँ कि 1988 में पहला हिंदी गाना जो नाइट क्लब में बजा था वो मैंने प्ले किया था. उससे पहले हिंदी गाने नहीं बजते थे. फिर घुंघरूज में भी एक बार प्ले किया था दिल्ली में मैंने. मैं तेरा तोता वाज द फर्स्ट हिंदी सॉन्ग आई हैड प्लेड, चंकी पांडे का. डीजे वाला काम भी काफी सीरियसली किया है मतलब? हाँ बहुत डीजे किया मैंने यार. मतलब कॉलेज में तो बहुत किया था. होस्ट एंड दोस्त लिखता था पोस्टर पे. अच्छा वो तब से वो लिख रहे हो? 200, 250, 300 रुपया मिलता था.
फिर वहाँ पे 90s में, अर्ली 90s में एक जी टीवी करके नया चैनल शुरू हुआ था, सैटेलाइट टीवी, तो वहाँ पे ऑडिशन के लिए बुलाया था अंताक्षरी शो के लिए। तो मैं मिमिक्री करता था, गाने गाता था, डांस करता था, डीजेइंग करता था। तो मैं बोला चलो यहाँ भी जाते हैं, तो आई गॉट इन। अंताक्षरी में मेरे को सिलेक्ट कर लिया एज अ होस्ट ओके। टीवी पे। तो अंताक्षरी वॉज माई फर्स्ट ब्रेक ऑन टेलीविजन, बट फर्स्ट एपिसोड शूट करने से पहले मैं भाग गया था। दैट वाज द मोस्ट अनप्रोफेशनल थिंग आई डन इन माय एंटायर लाइफ। क्यों भागे? मेरी बहुत फट गई थी। सीरियस रीजन क्यों से मेरी भागे फट आप? गई थी कि मुझे ऐसा लगा था कि इतना पॉपुलर है ये शो, और ये मुझे पता था कि ये शो ब्लॉकबस्टर होने वाला है, बट आई विल नॉट बी एबल टू डू मच अबाउट दिस। सो आई विल ऑलवेज बी नोन एज द गाय हु होस्टेड अंताक्षरी. Thank God they took someone who's so versatile like Anu Kapoor. Anu Kapoor is a very fine actor and he's a very big personality. So he made sure that Antakshari became his. He did not become Antakshari's. But मैं तो नया लड़का था, तो मेरी लाइफ में I would always be known as the guy who was the host of Antakshari. I wanted to be known as host and dost Sajid Khan. Host and dost Sajid Khan. And you did. You so after that see यार उस टाइम पे ना टीवी पे बड़ी 2-4 चीज़ें थी जो I think in my opinion people will remember. Now also if you speak to them now they'll remember. One was your show इक्के पेक्का, कहने में क्या हर्ज है, साजिद नंबर 1, बोलो तारा. I was there. I will always remember that because उस टाइम पे ज़्यादा थे नहीं who were interviewing. ये इंटरव्यू होते थे, इंटरव्यू करता था, रोस्टिंग करता था, हैम सीन्स दिखाता था फिल्मों के, फिल्म इंडस्ट्री का मजाक उड़ाता था. तो हफ्ते में एक बार थ्रेटनिंग कॉल आता भी था. मैं बोलने ही वाला. अलग अलग गालियाँ पड़ती थी, और फिर उनकी पिक्चरों की और बैंड बजाता था. तो जब डायरेक्टर बना तो कहीं ना कहीं सब लोग ऐसे तलवार चाकू लेके रेडी थे. अब आ बेटा, तूने बहुत पिक्चरों का मजाक उड़ाया. गॉड वॉज काइंड पिक्चरें चल गई. जब नहीं चली हिम्मत वाला तो ऐसे टूट पड़े मेरे को, मतलब साइक्लोन आ गया. तो ऐसा कहते हैं कि द वेट इज ओवर बिकॉज अंकित एंड मी बोथ आर क्लियरली ओवर वेट. इसीलिए हम लोग वी आर द मैन इन ब्लैक. ब्लैक पहनने से ना अक्सर छीतड़े छुप जाते हैं. तो वही हो रहा है. वैसे तेरा भी वेट काफी पुट ऑन हो गया, मेरा भी काफी पुट ऑन हो गया. आई लव ईटिंग यार. नहीं, मेरा वो रीजन नहीं है. हाँ, मेरा वो रीजन नहीं है. तो क्या रीजन है? अच्छा, डिप्रेशन? ना, नॉट एट ऑल. प्यार हो गया है? नहीं, मुझे भी प्यार हो गया खाने से. मैं बहुत खाता हूँ यार. Really? बहुत खाता हूँ. टीवी पे बहुत टाइम से गाली खाई थी. हाँ. अच्छा, वैसे आपने भी मतलब खाई है थोड़ी बहुत, बिकॉज वो रोस्टिंग जो आप करते थे. हाँ. मैं फर्स्ट टाइम स्टैंड अप कॉमेडी 90s में मैंने किया. फिल्मों का रिव्यूज, उनका मजाक उड़ाना, मतलब वो कल्चर कभी लोगों ने देखा नहीं था 90s में. सो आई हैड बिकम लाइक दिस इनफैक्ट द टेरेबल ऑफ बॉलीवुड, यू नो, कि यार ये कहाँ से आ गया. तो इट वॉज दैट, यू नो. बट आई वॉज ऑल्सो हैविंग फन. आई वॉज मेकिंग देम लाफ. सो at quite an expensive. मैंने कहीं पे सुना भी है बिकॉज के कई थिएटर के बाहर आपको पकड़ के पता नहीं क्या किया था. ये मैं तेरे को एक इंसिडेंट सुनाता हूँ. जब मैं 13-14 साल का था ना, मैड मैक्स 2 करके एक पिक्चर आई थी, एडल्ट थी. तो मैं इरोस में देखने गया था वो पिक्चर 1:30 बजे के शो में. उसने मेरे को पकड़ लिया था कि एडल्ट पिक्चर है, नहीं जा सकते अंदर. तो मैं अपना शर्ट वर्ट थोड़ा खोल के, 13-year-old गाय ट्राइंग टू लुक 18, यू नो, थोड़ा शर्ट वर्ट खोल के ऐसे सिगरेट विगरेट मुंह में ऐसे रख के, चेन वेन लगा के ना, घुमा फिरा, कुछ नहीं किया. 4 बजे के शो के लिए ट्राई टू स्नीक इन अगेन. फिर से उसने पकड़ा. 6:45 के शो के लिए फिर से उसने पकड़ा. और लकीली मेरे को जब पकड़ता था ना, मैं टिकट बेच देता था किसी को, क्योंकि मेरे पास एक टिकट के पैसे थे. फिर 9 बजे के रात को मैं था गया, उसको भीख मांग रहा, मेरे को देखने दे यार प्लीज़. तो वो हंसने लगा, वो जो वन का वॉचमैन था. इसे मैं अपने बच्चों को भी नहीं देखने दूंगा ये पिक्चर. ऐसे मैं तेरा बच्चा नहीं हूँ. ऐसे मैं अनाथ हूँ, मुझे देखनी है पिक्चर. इसने पिक्चर में एडल्ट सीन है. ऐसा मैं एडल्ट हूँ ना, मैं सब देखा है, मैंने सब देखा, मेरे को देखने दे. ऐसा हाथ जोड़ा तो हंसने लगा. बोला मेरी नौकरी जाएगी, ऐसे मेरी जिंदगी जाएगी अगर मैं फिल्म नहीं देखूंगा. तो यार प्लीज़ मेरे को देखने दे. फिर लास्ट ट्रेन चर्चगेट की पकड़ के मेरे को सेंट्रल क्रूज स्टेशन वापस जाना, मेरे को देखने दे प्लीज़. मैड बैक्स गाड़ी पलटती है, ट्रक उल्टा होता है, वो देख. तो हंसने लगा. जा अंदर जब घुसा ना, मुझे ऐसा लगा था मैं जिंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड जीत चुका हूँ. एडल्ट पिक्चर में एक 13 साल का लड़का बैठा है 70 mm स्क्रीन पे मैड मैक्स 2 देख रहा है. और ऐसा कुछ एडल्ट था भी नहीं उसमें. अच्छा, ऐसा क्या? नहीं था. हुआ बनाया हुआ था, बट एडल्ट थी ना, सर्टिफिकेट एडल्ट था. अच्छा, अवार्ड शो से भी मेरे को ध्यान आ रहा है. उधर भी आपने 1-2 बारी गाली खाई. एक बारी खाई है वो आशुतोष और मेरी. हाँ, स्क्रिप्टेड था. नहीं. अरे मेरी लाइफ बता तो क्यों. उसके बाद क्या हुआ ना, काफी अवार्ड जो आप लोग का वो हुआ था ना, तो उसके बाद आई रिमेंबर दैट आई वाज वाचिंग इट इन फैक्ट. तो उसके बाद ना काफी अवार्ड शोज में ना ऐसे दिखाते थे कि लड़ाई हुई. उसके बाद बिकॉज दैट पुल्ड, देयर इज अ वीडियो ऑन YouTube where the Will Smith slap thingy happened
and that video says we did it before. With Ashutosh Gawari. Although technically we didn't slap each other. Ashutosh is like an elder brother to me. I know him for many years. जब उनकी शादी हुई थी, Farah and I were there. We know each other since a long time. And Ashu, I mean today, I mean, and it's not like कि हम दुश्मन हैं, हम तो best friends हैं. हम तो उस दिन से लेके आज तक अक्सर 2 हफ्ते में एक बार साथ में खाना खाते हैं. हमारा एक ग्रुप है. अच्छा. हाँ, सुनीता एंड अशु लाइक फैमिली. आई लव देम. और फिर अब मैं उसको बोलता हूँ कि यार आज का जो साजिद खान है वो 10 साल 12 साल पहले का साजिद खान को जाके बोलता, बॉस गो इजी ऑन द जोक्स, Okay. you're not realizing but you're hurting people. And my job was to make people laugh here. And in that laughter ना क्या होता है, sometimes even at the Oscars you see ना, they cross the limit. अब लोग अगर हंसते हैं तो आपको ऐसा लग रहा है एक्सेप्टेंस हो रही है, और मैं विदाउट स्क्रिप्ट काम करता हूँ, तो आई डेफिनेटली पुट माई फुट इन माई माउथ इन मैनी शोज एंड इट गॉट अफेक्टेड, इट गॉट एक्सेप्टेड, बट एट दैट particular moment things went a little ballistic, and you know, I think he was right from what he was saying and I was also right in what I was saying. कि my job is not to service few filmmakers, my job is to service the public. मैं public के लिए काम करता हूँ. तो अगर मेरे Instagram पे भी जाएगा ना, तो I think I'm the only person who's written public servant of entertainment. मैं public servant हूँ. I am a public servant. My job is to ensure that people are happy. Whoever pays and buys a ticket or comes for a show, they should feel satisfied कि मजा आ गया. Wow, yeah, good way to think of it like that. Very nice. हाँ, अभी तुम एक बोलेगा झाड़ू वाड़ू मार दूँ, मैं मार दूंगा. नहीं पैसे मांगूंगा तेरे से. हाँ, ये भी ठीक है. अच्छा बात बताओ, चलो ये मैं आउट ऑफ एक कॉन्टेक्स्ट चीज़ पूछ रहा हूँ, जो द अमाउंट्स दैट वी हेयर आज के टाइम पे जो एक्टर्स कमाते हैं, फिल्म्स कमाती है, डू यू थिंक वो मतलब वो उतना ही होता है जितना हम सुनते हैं कि एक स्टार को क्या होता है, मैं तेरे को समझाता हूँ. 70 करोड़ मिल गए या होता भी है और नहीं भी होता है. इसके पीछे 2 कारण हैं, 3 कारण हैं. पहला कारण इतना खास नहीं है. ओके. दूसरा कारण मुझे याद नहीं, और तीसरा तो तू जानता ही है. तो ये 3 कारण है. सर वेरी बैड ओल्ड डायलॉग, सॉरी. होता है और नहीं भी होता है. कहीं ना कहीं PR एजेंसीज ना, they are also a very important part of the film. It is showbiz, ना. Showbiz you have to show. अब मुझे एक बात बोल, कैसे लोगों को पता चल जाता है कि एयरपोर्ट पे कौन आने वाला है, किसी रेस्टोरेंट पे कौन आने वाला है? PR ही कराती है. और ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये गलत है. आपको भी तो मज़ा आता है देखने को ना, इंस्टा पे लोगों को मज़ा ही आता है ना. सो इट्स सर्विस, डिमांड सर्विस, इट्स दैट सिंपल. अब आई फील पर्सनली कोई एक्टर अगर ज़्यादा पैसे मांगता है तो कौन हो सकता है उसको बोलने वाला कि आप ज़्यादा पैसे मांग रहे हो? पैसे की जो सेटिंग होती है, पैसे का जो एक कैप होता है ना, वो कैप होता है मार्केट के थ्रू, कि दिस इज़ हाउ मच द रिकवरी ऑफ द फिल्म इज़. इतने में डिजिटल बिकेगा, इतने में सैटेलाइट बिकेगा, इतने में पिक्चर बन सकती है, इतना हम आपको दे सकते हैं. अगर आप नहीं देंगे तो कोई और दे देगा, क्योंकि एक्टर्स गिन चुन के 5-6 ही है, प्रोड्यूसर्स की कमी नहीं है. और कितने सारे लोग बॉलीवुड में सिर्फ बाहर से अटैच होके भी आते हैं बिकॉज ऑफ द ग्लैमर. जैसे कि हमको पैसे लगाने. कभी कभी उनकी फिल्में चल जाती हैं, कभी कभी दे रन विद द टेल्स बिटवीन द लेग्स कि यार बहुत नुकसान हो गया पिक्चरों में, यार द ग्लैमर वाज़न्ट वर्थ इट यार. अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वर्क्स इज अ गुड फिल्म, एंड अ गुड फिल्म आई फील इज अ हिट फिल्म. अच्छा ऐसा. हाँ. एनिमल कैसी लगी? मुझे अच्छी लगी. अच्छी लगी. हिट फिल्म है. 500 करोड़ किया. कभी कभी आपको फिल्म आप अग्री नहीं करते हो कुछ फिल्मों के साथ, जैसे KGF 2 फॉर एग्जांपल 400-450 करोड़ किया है. मैंने अपने दोस्तों के साथ देखी. पार्ट 1 बहुत अच्छी लगी थी, पार्ट 2 इतनी अच्छी नहीं लगी. लेकिन हमसे, अब मेरे दोस्त गाली दे रहे हैं बकवास है. ऐसे नहीं यार, 400 करोड़ वाले हफ्ते में हम इस पिक्चर को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वी हैव टू बाउ डाउन टू दिस फिल्म कि अच्छी पिक्चर है. अगर आपका बॉक्स ऑफिस स्ट्रांग है तो वो फिल्म गलत हो ही नहीं सकती है, वो फिल्म बुरी हो ही नहीं सकती है. आप ये बोल सकते हैं मुझे अच्छी नहीं लगी, ये नहीं बोल सकते कि फिल्म बकवास है. आप बोलोगे मुझे बकवास लगी. You understanding what I'm saying? Yeah. So I feel any film that works at the box office is a good film for everybody. It may not be for you and me. Okay. वैसे now that you said 5 actors, को ask who's your favorite right now? I mean, do you have any favorites? Because I want to ask you this in relation to, because I'm assuming you have a lot of friends in the industry.
वैसे who all Everybody is can everybody's friend in the industry. I like all the three Khans. I like Ajay very much. I like Akshay very much. I think Ranbir Kapoor is not only a dear friend, but I think he's also. I think somewhere the future lies with him. Yeah. Yes, Ranbir Kapoor. Ranbir. I think somewhere the future does lie with him. You know, and the kind of connection he has with the audience, and he's not on social media. Yeah, he's not. Yeah. Yeah. You know, that's the reason. I think this is one of the reasons people are so intrigued. ज़्यादा intrigue हो जाते हैं उसके बारे में. आई थिंक सोशल मीडिया से फायदे भी हैं, नुकसान भी है. नुकसान थोड़े ज़्यादा है मेरे को पूछो तो. फायदे तब है जब आप उसको मोनेटाइज करते हो और पैसे कमाते हो. हाँ, वो तो खैर. हाँ. वो तो बात ही अलग है. फिर अब अगर आप एवरीडे एक फोटो भी डाल रहे हो कि मैं अभी चाय पी रहा हूँ और मैं अभी एक चिकन खा रहा हूँ और अभी मैं अभी यहाँ पे इधर कहीं पे फुटबॉल खेल रहा हूँ और मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मैं तो देन वो आपका हल्का सा स्टार्टअप मेरे हिसाब से कम हो जाता है. नहीं ठीक कह रहे हो. मेरे हिसाब से भी वैसा ही है. I mean, this is like you're a star, right? Like you're a star. Like everyone can see or want to be there, but no one can touch it. You know what I mean? अगर आप Instagram और इंस्टा पे ज़्यादा इतना ज़्यादा visible हो, so there is connectivity also, but then there is everything about the person rather than. I think the film industry has lesser stars now and more celebrities. There's a big difference between a star and a celebrity, Ankit. Yeah, big difference. I think everyone's a celebrity. Yeah. Very few are stars. Celebrities मीडिया के पीछे भागते हैं कि फोटो खींचो ना, इंटरव्यू करो ना, राइट अबाउट मी ना, टॉक अबाउट मी ना. मीडिया स्टार्स के पीछे भागते हैं. सेलिब्रिटीज लाइन में खड़े होते हम लाइन में क्यों खड़े रहे, हम सेलिब्रिटी है बॉस. स्टार लाइन में खड़े हो तो आगे वाला बोलता है आप लाइन में क्यों खड़े, आप आगे आइए. Okay. दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ स्टार. तो सेलिब्रिटी आप खुद बना सकते हो अपने आप को, कोई भी बन सकता है. स्टार सिर्फ और सिर्फ आपकी किस्मत और पब्लिक का प्यार बनाती है. इसीलिए तो ना यू सी सलमान, शाहरुख, आमिर, अक्षय, अजय, all of them came in the 90s. Salman and Amir came in the 80s, late 80s. Yeah. अब तक डटे हुए हैं पिलर्स की तरह. भले पिक्चर चले नहीं चले, दे आर सुपरस्टार्स. क्यों? I don't know, man. I really don't. कनेक्ट बहुत स्ट्रांग हुआ उनका ऑडियंस के साथ 90s में. गाने बहुत बड़े हिट मिले उनको. पिक्चरें भले बड़ी हिट्स मिली तो मिली, लेकिन गाने बहुत बड़े उनके हिट हुए. फिर लेट 90s में सैटेलाइट टीवी ने उनकी बहुत फिल्मों को दिखाया है. हाँ, वो तो है, ऑफ कोर्स. आई ओपनली चैलेंज यू, अगर आपके पास सेट टॉप बॉक्स है इंडिया में और आप मूवी चैनल्स को फ्लिक करो ना कहीं आपको सलमान की फिल्म दिखेगी मूवी चैनल पे, 100%. अक्षय की दिखेगी, सुनील शेट्टी की, अजय की, सनी देओल की, इनकी दिखती रहेगी. तो इनका जो लीनियज है ये बहुत स्ट्रांग है. इनका जो पावर है इनका बहुत स्ट्रांग है. ऑडियंस कनेक्ट बहुत स्ट्रांग है इनका. जो 70s और 80s के एक्टर्स को उतना नहीं मिला था क्योंकि वो खाली मैगजीन में छपते थे और न्यूज़पेपर में आते थे या होर्डिंग पे लगते थे. और बहुत पागल हो जाते थे, अरे यार आज मैंने गाड़ी में जितेंद्र को देखा, अरे यार जितेंद्र को, ऐसा होता था. अब नहीं है. मैंने सुना है फिरोज खान साहब का बहुत क्रेज होता था. सबका ही होता था. मोहन चोटी का भी होता था. या बीरबल का भी होता था. नहीं होता था. आई एम नॉट जोकिंग. अरे मोहन चोटी आ गया. सीरियसली. I mean, with due respect to Mohan Choti. I'm just saying what you're saying. Yeah. They were very funny, but होता था, उनका क्रेज होता था. Okay. Yeah. Okay. अच्छा, how is it with you and Farah ma'am now? Like, are you guys very close? मतलब कैसा है? I'm more closer to her kids now. I was just going to ask. That's why I was asking. How are you with her kids? I'm like a friend to them. So, in fact, in Big Boss also, I became a little closer to Sumbul because she was the youngest, and she was reminding me of my niece. So I become a little more protective. I become a little more easier with them, And see, today's kids now, you can't control them. Man. You have to just be nice to them, and you have to just tell them that this is right and this is wrong. Now take your own decision. Yeah. And the way they've been brought up, I love those kids. So I talk to her kids every day, and I talk to her once every 10 days. Okay. Okay. What do you call her husband? Jija. No, I call him Shirish. Yeah. As is bad. Okay, lame jokes. Sorry. तो अभी now you've been, I mean, हो गए यार काफी थोड़े बहुत साल आपके. You have not directed. No, it's been 5 years. 5 years. I'm going to start very soon. Nervous हो रहे हो? नहीं. नर्वस क्या? नर्वस आदमी कब होता है? नर्वस आदमी यूजुअली होता है अपनी पहली पिक्चर से पहले.
उसके बाद नर्वसनेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाता है, बिकॉज यू फील कि अभी आता है ऑडियंस के साथ, थोड़ा सा कनेक्ट है, थोड़ा समझ में आता है. हे बेबी मुझे याद है रितेश देशमुख, मैं और मिलाप जवेरी जो मेरा को राइटर था, मेरा दोस्त भी है, Okay. हम लोग PVR में देखने गए पिक्चर फ्राइडे को, 3 बजे का शो, 3-3:30 बजे का शो, और अंदर रिएक्शन देख रहे और बाहर ना जो कैंटीन था ना, हम लोग तीनों नाचने लग गए थे. हिट हो गई. क्या बात है? एक्चुअली आई एम नॉट जोकिंग. डांसिंग फुल, जितन हिट हो गई, वो डांस करे. रितेश और मैं लावड़ी का हिट हो गई, और मिलाप भी नाच रहा है तीनों, बिकॉज ऑल 3 of us needed a hit. It was my first film. Milap had like 6-7 flops as a writer, you know. Ritesh had also not had too many success. हम लोग पागल हो गए थे. I wish तभी कुछ डॉक्यूमेंट किया होता या वीडियो शूट किया होता हम लोग. That was a good movie. It's a very nice movie. Yeah, and people who were coming out of the other show ना screen number 2 से देख रहे हैं, ये 3 लोग क्यों नाच रहे हैं? हिट हो गई. पागलों की तरह नाच रहे थे. हाँ. अच्छा, okay. So, like now Ritesh, I'm assuming is a very close friend. Like a brother. Yeah. Brother, and I think somewhere I feel extremely talented when it comes to comedy. Is very difficult, brother. Comedy is very difficult. There are गिन चुन के actors who can do comedy, who can pull off comedy. And I am a comedy director. I like comedy. I like doing comedy myself. तो मुझे ऐसा लगता है कि it's the most difficult aspect of acting, comedy, because it's about action and reaction. It's about timing. It's like एक डायलॉग है कि रोको मत मारो. बुरे एक्टर को दे दोगे तो वो बोलेगा रोको मत मारो. सेम डायलॉग उल्टा कर दिया. यू नो, मैं बदनसीब बाप बन गया, अब वो बोलेगा मैं बदनसीब बाप बन गया. समझ रहे तू? तो कॉमेडी इधर से उधर कर सकता है, एक्शन का रिएक्शन होना चाहिए. अक्षय, मेरे ओपिनियन में अक्षय रितेश, रणवीर, वरुण, बहुत गिनती के कम है. मिस्टर बच्चन, धर्म जी, they were outstanding at comedy. I mean, not to mention the greats like Johnny Lever and Mehmood Saab and all. They were Kader Khan, Shakti is outstanding at comedy. Yeah, it's about timing. It's about timing. So most of the actors ना उनको कॉमेडी से थोड़ा डर लगता है कि कर सकते. आयुष्मान इज वेरी गुड, यू नो, कार्तिक इज वेरी गुड, बट कॉमेडी इज ऑल्सो अबाउट बॉडी लैंग्वेज. Okay. बढ़िया. तो first day of Houseful 4 in London, Akshay and me sitting, we reuniting after like 2012. In the middle, we had not worked together for 4-5 years, and we call each other Sundi. क्या है? Sundi. We call each other Sundi. Sundi, क्या कर रहा है Sundi? We just call each other Sundi. Sundi कीड़ा होता है मालूम ना, खरपतवार में. तो फर्स्ट शॉट जब लिया ना, तो आई वेंट टू ऐसे Sundi, थोड़ा और. तो ही टुक मी टू द साइड. ऐसे Sundi, ये तू थोड़ा अभी सिनेमा थोड़ा रिलैक्स हो गया है, थोड़ा लाउड नहीं करना चाहिए अपने को, थोड़ा ओवर लगेगा, थोड़ा रिलैक्स करते हैं. ऐसे Sundi, इट्स हाउसफुल में तो ये सब थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा अपने को, है ना, थोड़ा सा लार्जर देन लाइफ थोड़ा सा करना पड़ेगा, लाउडर. तो इसे नहीं, डायलॉग्स भी तो इंपॉर्टेंट होते हैं. ऐसे होते हैं, ऐसे चल एक गेम खेलते हैं. दिस इज इन बिटवीन द शॉट, वी आर टॉकिंग. आई सेड रितेश, Sundi, तुम लोग दोनों मुझे बोलो कि दुनिया का सबसे, मैं तुझे भी पूछता हूँ, दुनिया का सबसे नंबर 1 कॉमेडियन ऑफ ऑल टाइम्स कौन है? यार मैं अपनी जनरेशन जो मैंने ऑल टाइम्स बोला, ऑल टाइम्स नंबर 1 बोलना. यार मेरे को तो आई लव परेश रावल एंड अरे वर्ल्ड वाइड स्टैंड अप कॉमेडी, वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट कॉमेडियन ऑफ ऑल टाइम्स कौन है? मेरे ओपिनियन में वर्ल्ड का सबसे ग्रेटेस्ट. अरे नहीं पता मुझे ना, बता दो. सॉरी. इसका अच्छा फोटो अच्छा है. थैंक यू. अच्छा बताओ, मुझे नहीं पता. चार्ली चैपलिन ना यार. अच्छा चार्ली ओके. तू क्या करता है? सॉरी मैं स्टैंड अप देखता था ना ज्यादा. अरे बट चार्ली, किसी को भी पूछो दुनिया का सबसे नंबर 1 कॉमेडियन ऑफ ऑल टाइम्स, किंग ऑफ कॉमेडी, करेक्ट, चार्ली चैपलिन. करेक्ट 100% करेक्ट. तो वो दोनों ने चार्ली चैपलिन बोला, तो मैंने बोला चार्ली चैपलिन डिड नॉट हैव डायलॉग्स, and he still made you laugh with body language. I said भगवान ने बहुत कम लोगों को वो गिफ्ट दिया है बॉडी लैंग्वेज का, जिसमें तुम दोनों हो. बॉडी लैंग्वेज कॉमेडी एक अलग चीज होती है. Is how the art of being silly, the art of doing slapstick without really, you know, feeling awkward. You know, that you can pretty much do anything and everything. Akshay Kumar, Ritesh Deshmukh, they're very gifted actors when it comes to body.
And I'm a director who understands slapstick comedy. I do. So Yeah. I also do body language comedy. So that I think is very important. Yeah. कुछ फर्क दिखता है from the time you were doing Houseful and after you were not? No, they're all friends. Nadia is like a brother to me, Sajid Nadia. So I would like to just wish him all the best and just ensure that he's a master filmmaker and he's a master producer. He knows the right art of making hit films and big films. Okay, good. So Like 4-5 ही तो हैं यार. There's T series, there's Yashraj, there's big Karan ones are very- Johar, very few. there's Sajid Nadia जो फिल्म इंडस्ट्री को बराबर चला रहे हैं. बराबर. हैं डीनू वीनू और भी हैं प्रोड्यूसर्स, बट दीज आर द 4 बिग पिलर्स यार. okay. शादी करने का मन नहीं करता? कभी नहीं. कभी इतना जल्दी आंसर? मेरे को लगा 2 मिनट कुछ सोच के बोलो. नहीं यार. नहीं यार. एक गर्लफ्रेंड थी मेरी जिसने मेरे सर पे गर्म पानी डाला था थिएटर के अंदर. सीरियसली? हाँ 1995 में नया नया टेलीविजन पे आया था मैं. आई वाज डेटिंग दिस वन वेरी नाइस गर्ल. वो गर्म पानी लेके घूमती थी अपने साथ बिकॉज शी डिड नॉट ट्रस्ट मिनरल वाटर. ओके. हाँ तो गर्म बॉइल्ड पानी लेके घूमती थी. हम लोग पिक्चर देखने गए थे रीगल में. हाँ. और सामने की सीट पे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड बैठी थी. इट्स लाइक अ फिल्मी सीन. तो शी टर्न्ड अराउंड Okay. and she said, hey, hi, how are you doing? I said, hey, good. All good. Movie, let's watch. Yeah, we'll talk in interval. उससे पूछा, who's she? I said, no. She said, who's she? I said, a fan. So she's like, a fan? She didn't talk to you like a fan. I said, I'm on TV here. People know me. See, people know me. Then she turned around. She said, Sajay, you want to get something? I'm going out to get a coffee. You want something? I'll get from the cafeteria. So I said, no. Come on. I know you like samosas. Na? I'll get samosas. तो ये बोलती है fan. How does she know you like samosas? I said, my ex-girlfriend. So she what? I said, my ex-girlfriend. I said, what? Ex-girlfriend. So this, oh, the ex-girlfriend. She wants to get you samosas and some water to drink. Here, drink this water. And she poured the hot water on me in the theater. And I'm like, I'm like screaming and shouting. और पूरा रीगल सिनेमा का बैल्कनी हंसने लग गया. और ये उठ के चली गई. अब मेरी पिक्चर चालू हो रही है, डाई हार्ड 3 यार. मैं पागल हो रहा हूँ, डाई हार्ड 3 के लिए आया हूँ मैं पिक्चर देखने को. और गीला हो गया मैं पूरा. और पूरा बैल्कनी पूरा हंस के गिर रहा है. बिकॉज उन्होंने पहचान लिया था ये आता है टीवी पे आता है, टीवी पे आता है यार करता है. अब मैं उठा और उनके सामने ऐसे बाउ डाउन किया मैंने. एंड आई वॉकड आउट वेरी शीपिशली यार. पूरा ड्रेंच किया. अच्छा नीचे बाहर गया. शी वाज स्टैंडिंग आउटसाइड. अच्छा, वेटिंग ऑल्सो? हाँ. और पानी लेके? नहीं. Where's my flask? I met her like 6-7 years ago. अच्छा, from the industry? I met her with, she's got kids now. Okay. And I reminded her of this incident. She She said, you were stupid enough to go back and get the flask also. नहीं, this next time find a. So at least तो ठंडा पानी पिए. I think marriage, I've missed the boat and the bus here, seriously. And I genuinely feel, nahin yaar, it doesn't work. I'm like, Kids? I love kids here. I love kids. I mean, Do you want to have of your own maybe? no, I love kids. Yeah. I mean, Farah's kids, I'm like an uncle to them, like a friend to them. My friends' kids, I spend time with them. बच्चे होते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है, but tension भी बहुत होती है यार. अच्छे हैं, दूसरों के अच्छे. As long as you don't have to live with them. टेंशन होती है, बहुत टेंशन होती है. कहीं बीमार ना पड़ जाए, स्कूल में कुछ गलत ना खा लें, लोग रास्ता बराबर क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं. तो पेरेंटहुड इज अ वेरी चैलेंजिंग थिंग यार. इट्स अ वेरी चैलेंजिंग थिंग यार. It is. Yeah. I think sometimes most people who get married, they get married because they have to, not because they want to. I feel. ये बिग बॉस वाली कहानी बताओ थोड़ी. एक तो मेरे को फॉर सम रीजन ना देखा तूने? मैं जनरली बताता हूँ, मैंने नहीं देखा. मैं बहुत, जब क्या मॉम बहुत शौक से देखती हैं तो मैं बिट्स एंड पीसेस देखता हूँ जनरली. सॉरी. नहीं, that's all right. That's all right. तो मुझे पर एक चीज़ बताओ. I haven't produced the show. It did very well, but Yeah, it did well. I've heard it did well. But for some reason, I don't know why. I asked this to everyone who's been on Big Boss. Scripted लगता है यार कई दफा, because है हाँ या I ना. had 10 paisa for every time I got asked that question. Today I would have at least 200-300 rupees in my pocket. 10 पैसे का एक सवाल अगर कोई मुझे पूछता तो आज 200-300 रुपए होते. नहीं यार, स्क्रिप्टेड नहीं है.
या एक चीज पूछूं, ह्यूमन रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं यार, अब तू और मैं कितना भी एक दूसरे को चाहें अभी इस वॉडकास्ट में तारीफें करें, अगर तुझे और मुझे इसी कमरे में बंद कर दिया गया है और कैमरा फिट कर दिए गए 10 दिन के लिए, तू और मैं जानी दुश्मन हो जाएंगे, फिर रोएंगे, फिर गले मिलेंगे, फिर नाचेंगे, फिर अपनी अपनी जिंदगी के दुखड़े सुनाएंगे, फिर से झगड़ा करेंगे, फिर से प्यार करेंगे, फिर से दोस्ती मेंटेन करेंगे, फिर से दुश्मन हो जाएंगे। ये बड़ी नेचुरल बात है, ये बड़ी नेचुरल बात है। इट्स अ सुपर्ब कॉन्सेप्ट द शो। सो मेंटली आई वाज लाइक कि ठीक है यार, कोविड की वजह से बहुत लोग घर पे बैठे थे, ठीक बात है। यू नो, और कैमराज नहीं लगे थे। हाँ। यहाँ पे समवे यू हैव टू ऑल्सो बी एट योर, यू नो, यू हैव टू बी अ लिटिल कॉशियस, बट इट्स ह्यूमन नेचर। अंकित, तो बिग बॉस जो भी बोलता है कि स्क्रिप्टेड है, भैया मैं वहाँ पे 107 दिन था, स्क्रिप्टेड नहीं है। वो आपको ऐसे टास्क देते हैं जो ऑटोमेटिकली आप अपने माइंड में स्क्रिप्ट बनाना शुरू कर देते हो। गॉट इट? तो मेरे लिए बहुत सिंपल बात थी कि यार इट्स अबाउट जस्ट बीइंग देयर, एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो सीजन इसलिए भी काम किया बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम बिग बॉस में एक आदमी आया था जो झगड़े रुकवा रहा था। I saw those bits. आप Yeah. रुकवा रहे थे, but you also got a hyper few Of times. course, Yeah. anybody would get hyper. I'm telling you यार, दुनिया का सबसे शांत आदमी वहां जाके हाइपर हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना। बट क्या फायदा हाइपर होने का? नॉर्मली जब दो लोगों का झगड़ा होता है ना, तो एक दूसरे को ऐसे देखते थे, फोड़ डालूंगा, झगड़ा वगड़ा करके दे वॉक ऑफ। यहाँ से यू कांट वॉक ऑफ। हाँ, correct. रात को बैठ के साथ में खाना ही खाना है। और फिर बिग बॉस ऐसी गेम खेलते हैं, वहाँ पे वॉइस आती है कि आप दोनों को रूम शेयर करना है साथ में। अच्छा, ये अब भी टास्क में आप दोनों को साथ में रहना है। यू अंडरस्टैंड? So that's the nature of the game. It's a brilliant game. I understand, but वो sometimes when I see the people they're fighting too much, it's like they want to be दिखने के लिए वो कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगता है, maybe I could be ये wrong, बात but भी, मेरा ये बात opinion भी doesn't सच, matter. ये बात भी सच है कहीं ना कहीं, और क्यों नहीं, क्योंकि इतने सारे कैमराज हैं, आपको एक मौका भी मिला है, यू नो, टू बी ऑन कैमरा। एंड बट मेरा क्या था, आई हैव बीन ऑन, आई न्यू दैट, यू नो, समवेयर आई, फारा टोल्ड मी, साजिद नडियाडवाला टोल्ड मी, माय अदर फ्रेंड अविनाश गवारीकर एंड हरप्रीत, आई एम जस्ट नेमिंग माय फ्रेंड्स, दे टोल्ड मी कि द वे वी नो यू एज अ पर्सन, you know, don't you feel it's about time that the rest of the country also knows you as the person that we know you and why we love you so much? Just be yourself. And that's who I was. क्या है, आप एक एक्ट पुट ऑन कर सकते हो 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। हर दिन आप एक्ट पुट ऑन नहीं कर सकते हो, आपकी सच्चाई कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। और बिग बॉस की वही स्पेशलिटी कि आप जो हो, अगर आप 3 हफ्ते से ज़्यादा टिक गए तो पब्लिक को समझ में आ जाता है आप कौन। ठीक बात है, दिख जाता है। आई एम इन टच विथ ऑल ऑफ देम। Is it? All of them. All of them. I'm in touch with all of them. Good यार, मतलब okay, ठीक है, एक्सपीरियंस अच्छा था मतलब ओवरऑल। बहुत अच्छा। आई थिंक आई लॉस्ट 7 kilos ऑल्सो। तू भी चले जा। मेरे को भी डाल दो। आप भी जाते हैं। हाँ, पैसे भी मिलते हैं और खाना नहीं मिलता है और कलेश भी होते हैं। हाँ, बट आपको ऐसे ही सोचना चाहिए कि यार ठीक है, इट्स जस्ट। अच्छा, दूसरी बात है, हाँ, देयर इज नो सनलाइट। ओ रियली? पर वो बाहर है ना, खुला एरिया थोड़ा। ऊपर सेट है, ये घर एक्चुअली एक सेट है। हाँ, ऊपर पूरा पतरा लगा हुआ है और लॉक्ड है और एसी है, गार्डन भी एसी है। अच्छा। हाँ, तो आपको समझ में नहीं आता है कब दिन हुई कब रात हुआ। समझ में आ जाता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग भोंगा बज गया, बिग बॉस के वासी गाना वाना गा रहे, सब चड्डी वड्डी में घूम रहे, बाल वाल ऐसे खड़े गाना वाना गा रहे। थोड़ी देर के बाद कैमरा ऑन है, ओके बी नाइस, ये होता था। फिर 10 दिन के बाद तो वो कैमरा ऑन बी नाइस भी नहीं होता था। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बिकॉज यू आर देयर, बट सनलाइट नहीं है। यार ऐसे तो पागल हो जाए। नो मोबाइल फोन्स, नो टेलीविजन, दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता नहीं है। कोई भी सेलिब्रिटी अंदर आता था ना, तो मैं मेंटली कैलकुलेट करता था, अभी 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, अरे वो पिक्चर रिलीज हुई, हाउ इज इट डन। उधर भी मूवी। हाँ, दे वर नॉट अलाउड टू इंटरेक्ट विद एनी ऑफ अस एंड टेल अस अबाउट बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ, तो आई वाज लाइक, बोलना वो पिक्चर चली कि नहीं। तो मेरा ये था। अच्छा, मेरे हाथ हिल रहे थे पहले 10-15 दिन तक, बिकॉज मैंने जिंदगी में, गरीबी में, अमीरी में, दुख में, सुख में, कुछ भी हो जाए, दिन में पिक्चर देखी है। एक पिक्चर थिएटर में, घर पे, मोबाइल पे, टीवी पे देखी है। बिना पिक्चर देखे मैं जी नहीं सकता। शूटिंग करते वक्त, शूटिंग के बीच में, शूटिंग के बाद, एक पिक्चर तो देखता ही हूँ। यहाँ पे पहले दिन से एक पिक्चर नहीं आता, हाथ हिलने लगे। तो सलमान भाई आस्क्ड मी ऑल्सो कि व्हाट इज यू गॉन इन अ शेल। I said, I'm like ODing. I said, and I'm getting cold turkey. I said, I need to watch movies here, or at least talk about movies. You know? तो now maybe I could be wrong,
but I know you're a smoker. I am, and I'm not a proud one, but I am. And सिगरेट पीना सेहत के लिए बहुत हानिकारक है. प्लीज़ सिगरेट मत पीजिए. ये वॉडकास्ट देखने के बाद प्लीज़ डू नॉट ट्राई टू स्मोक. It's one of the worst habits, but unfortunately, I've fallen prey to this habit ever since I was a kid, and because of films. Because of films. ये भी films में डाल रहे हो कैसे? How? Because of films. अरे एक गाना देखा था मैंने 1981 में, ये जो कन्वर लाल नाम है मेरा, कन्वर लाल, मेरी आवाज़ सुनो पिक्चर का. तो एडल्ट पिक्चर थी जो तभी देख ली थी वीडियो पे. तू क्या उससे सिगरेट का क्या लेना देना? उसमें जितेंद्र डबल रोल में था. एक कन्वर लाल था, कुत्ते कन्वर लाल बोल, जो ऐसे मोर सिगरेट पीता था, खट करके से जलाता. जितेंद्र मेरा भगवान है. यू नो, आई वॉज अ वर्शिपर ऑफ जितेंद्र, रजनीकांत, मिथुन चक्रवर्ती. आई वॉज अ वर्शिपर, क्रेजी अबाउट देम, क्रेजी. I used to wear a T-shirt which said "I love Jitendra." I'm not, I swear on God. I swear on God. I swear on my mom. I used to wear a T-shirt which said "I love Jitendra." Arey, I made Himmat Wala yaar. Come on. Yeah. Nobody's ever made a Jitendra remake. I was crazy about it. I started smoking here, and I started smoking because मेरा एक दोस्त था कुकू. हम लोग सामने वाली बिल्डिंग में क्रिसमस पार्टी थी, तो हम लोग क्रिसमस पार्टी गए थे. और मिशेल हम लोग के दोस्त थे, उन्होंने हेनरी सब ने पार्टी लगी थी, क्रिसमस पार्टी. तो कुक्कू ने ऐसे सिगरेट जलाया. वो मेरे से 4-5 साल बड़ा था. मैं बोले ये कन्वर लाल की सिगरेट है यार, सेम सिगरेट है, मोर सिगरेट्स. इसे पिएगा तू? ऐसे हाँ. इसे चल ट्राई कर. ऐसे नहीं मेरे को डर लगता है. अरे कुछ नहीं होता, ऐसे पी ऐसे. I'm a kid. He's teaching How me. old were you? 11-12. इतना जल्दी? Yeah. तो he is now teaching me how to smoke. सज्जो बराबर अंदर खींच, ऐसे अंदर जाना चाहिए धुआं, फिर बाहर, अंदर जाना चाहिए फिर बाहर. तो ऐसे हाँ वैसे खांस रहा है, मेरा सिगरेट खराब करेगा. बराबर पी मर्द कैसे बनेगा, सिगरेट पी बराबर. टीचिंग मी हाउ टू स्मोक. अच्छा. हाँ. तो नेक्स्ट डे अगेन कुकू एक और है क्या? हाँ ले. बस. वो जला रहा है. हाईलाइट की बात तेरे को बोलता हूँ मैं. कुछ 10-12 साल पहले मेरे को PVR जू में कुकू उसकी फैमिली के साथ मिला. साथ जो गले वले मिले और तो मोटा हो गया है ऐसे. हाँ तो सिगरेट अभी भी पी रहा है क्या? ऐसे हाँ. उसकी तरफ देखिए, मत पिया. कितना सिगरेट पिया. ऐसे कमीने कुत्ते, तेरे वजह से शुरू किया था मैंने. तूने मेरे को पकड़ के सिखाया था ऐसे खींच, ऐसे अंदर जाता है. इसे मेरे वजह से नहीं, कन्वर लाल की वजह से तूने शुरू किया था. ऐसे हाँ कन्वर लाल की वजह से, लेकिन तू रोक सकता था, तूने सिखाया था मेरे को. अब तू बोल रहा है कि सिगरेट बहुत ज्यादा पीता है. तो यार माई पॉइंट इज, समझ गया. I think all the smokers over here will agree with me that either you're a smoker, either you're a non-smoker. And if you're a smoker, try to quit it. I've tried many times. You know, I think a man's got to have one vice. I don't drink. You know, I'm not married. I'm like a brahmachari now. So it's a bad vice. Yeah. Cigarettes are bad. Okay. But you are right. You know, ये फिल्म में इन्फ्लुएंस होता है. मेरा सलमान खान, नो एंट्री, स्टेज पे आते हैं ब्लू शर्ट पे, वो गाना है मेन जो नो एंट्री का गाना है. सॉरी मैं अपना ये थोड़ा बता रहा हूँ प्लीज सॉरी क्यों? वो ब्लू शर्ट पे उनके हाथ में बियर थी, वो के अंदर सिगरेट थी और डांस कर रहे थे. वो तो वो टाइम था जब दिखा सकते थे. अभी बट वो कैरेक्टर थे ना. आई नो बट आई वाज लाइक वाओ, सलमान खान हैड द फिजिक, ही हैड द लाइक द थिंग, राइट? अरे बाबा, एनीवेज आई एम जस्ट थिंकिंग सुपरस्टार रजनीकांत सर, उनका तो वो है ना, वो मैं प्रैक्टिस कर सकता था. हाँ कर. नहीं नो वे. I'll try. Yeah. Don't. It's injurious to health. Yes, very bad. I've heard somewhere, correct me if I'm wrong, so I would love to meet Farah ma'am one day. I've heard when she's directing and when she's choreographing, she's quite, I get that vibe from you also, expressive. Expressive ठीक है बोलना. That's our Parsi side. हाँ, but I love it यार. आप लोग का जब वैसे गाली वैसे नॉर्मल कैसा निकलता है, फ्लो में निकल आता है या कैसा है? देख, दो तरह की गालियाँ होती हैं. एक होती है हम लोग मुंबई का रहे, तो और हम लोग स्पेशली I went to Maniji Cooper School, high elite ICSE school in the 70s and 80s, but my upbringing was Shivaji Nagar. You know, so I was hanging out with my Jhopadpatti friends. But from 9 o'clock till 3 o'clock, I was hanging out with the elite crowd of Maniji Cooper. I was very confused. Yeah. Okay. It is, I think, जब आदमी गाली देता है, इसलिए भी गाली देता है because it's part of a lingo. Yeah. It's like when they say the wise guys in New York, you know, the mobsters, the gangsters. They have the F words every 10 seconds in their conversations. It becomes part of their lingo.
बट अभी आई डोंट थिंक पीपल अब्यूज एनी मोर यार. इट्स एंड आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक्सेप्टेबल भी हो जाता है. देयर आर अदर डायरेक्टर्स आल्सो हु अब्यूज अ लॉट ऑन द माइक काम करते वक्त. फिर जैसे काम शॉट खत्म होते हैं, द नाइसेस्ट पीपल. No, I don't mean it in a bad way. I'm saying like, I love it. I तो love it है. मतलब I mean यार जब आप दोस्तों के साथ हो रहे हो देख मैं तेरे को हर कोई करता है, बोलता मतलब कोई नहीं है. मैं देखो मेरा और फारा का फंडा सिखाता हूँ, और बहुत सिंपल फंडा है. हमारा फंडा ये है कि हमने जब बचपन में अपने बाप की वाट लगते हुए देखी, जब बड़ी पिक्चर मेरा फादर बना रहा था और एक बड़े एक्टर ने मेरे बाप की वाट लगाई थी, हर दिन पानी की तरह पैसा बहता था और शूटिंग बंद हो जाती थी, शूटिंग डिले हो जाती थी, पिक्चर फाइनली बंद हो गई और नुकसान हो गया, घर बिक गए, गाड़ियाँ बिक गई. समवेयर वी हैव ऑलवेज बीन कि इफ समबडी हैज हायर्ड अस टू वर्क फॉर अस और वर्क विद देम और वर्क फॉर देम, इट इज़ आवर जॉब टू मेक श्योर कि यार बातें तो होती रहेंगी, खाने तो चलते रहेंगे, डिस्कशंस तो होते रहेगा, गॉसिप तो होते रहेगा, काम के वक्त काम करो. क्योंकि हर एक घंटा इज वर्थ लैक्स फॉर अ प्रोड्यूसर. Are you understanding? So, and now finally that regulation has come in the film industry, which is a very good thing. So, when I work or when Farah works, our whole idea is कि let's get the job done fast, यार. We are not here to socialize. We are here to work. Let's save the producers some money. जो फालतू चीज़ों में चले जा सकता है. 2 घंटा 3 घंटा डिले हो गए, बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, बैठ के बातें कर रहे हैं, कोई मेकअप वैन से निकल नहीं रहा है, कोई विग बराबर नहीं लगी है, कोई ड्रेस चेंज में चला गया है, कोई लाइटिंग में ज़्यादा टाइम लगा रहा है. वाई? तो वहाँ पे थोड़ा सा एंगर इशू आता ही है कि चलो यार जल्दी करो यार, चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो. दैट नेगेटिविटी कैसे डील करते हो? आदमी कई दफ़ा परेशान हो जाता है नेगेटिव चीज़ों से, राइट? बट कैसे हैंडल करते हो? आई थिंक कहीं ना कहीं आज की डेट में पिछले 8-10 सालों में बहुत लोगों को ये चीज़ों से डील करना पड़ता है जो सोशल मीडिया पे. सोशल मीडिया वाले तो बड़े बड़े मंत्रियों को नहीं छोड़ते, हाँ यार, बड़े बड़े एक्टर्स को नहीं छोड़ते. हम कौन हैं? हम किस खेत की रेडिश और मूली है? तो आई थिंक कहीं ना कहीं डोंट रीड द कमेंट्स. नाउ इफ यू वांट टू रीड द कमेंट्स, दे नॉट गोइंग टू बी वेरी नाइस, बिकॉज सम गाय सिटिंग समवेयर हु डजंट नो यू, हैज नो एक्सेस टू यू, wants to comment on your clothes or your hair or your makeup or your film or your life or what his thoughts are about you, you know, and you will read that and say, am I not that loved and popular with that person? So just ultimately क्या होता है यार, the way to deal with negativity is deal with it with positivity. Don't read. Ultimately आपका काम ही बोलता है कि आप कितना भी पब्लिसिटी कर लो पिक्चर का, कितने भी बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दो, कितने भी आप इवेंट्स कर दो, ऑडियंस ट्रेलर देख के सूंघ लेती है पिक्चर उनको देखनी है कि नहीं देखनी. ये नहीं देखनी, बिल्कुल सही बात. ट्रेलर अच्छा लगता है उनको तो प्री डिसाइड करती है पिक्चर हम देखेंगे. अब फिर पिक्चर पे डिपेंड करता है वो पिक्चर अच्छी है कि नहीं. अगर आपका ट्रेलर ही अच्छा नहीं है तो आप कितना भी उसमें शोर शराबा कर दो, इवेंट्स कर दो, डांस करा दो, ये करा दो, वो करा दो, ऑडियंस नहीं जाएगी. हाँ ठीक बात है. आई एग्री ऑन दिस पॉइंट कि ट्रेलर देख के आदमी डिसाइड कर लेता है ये जाना है या नहीं जाना है. इसमें भी हमारे इस वॉडकास्ट में भी नेगेटिव कमेंट्स आएंगे, देखना आएंगे. हाँ बट तू पढ़ना मत. समझ गया. तो पहला नेगेटिव कमेंट मैं ही डालूंगा. फॉलो कर लेना. किया सब्सक्राइब किया, देखा नहीं किया ना, नहीं किया ना, करो सब्सक्राइब करो, ऐसा मत करो. अरे प्लीज सब्सक्राइब करो आप सब. अच्छा लड़का है, अच्छा काम करता है, करो सब्सक्राइब यार, करो. आज की डेट में जहाँ पर हर चीज़ में आप YouTube लगाओ तो 70-80% चीज़ें नेगेटिव होती है, उसमें 20-30% अगर लोग अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव कर रहे हैं, तो करो सब्सक्राइब, अच्छी बात है. दूसरा, अच्छा तो आजकल क्या देखते हो बॉलीवुड वाइज क्या देखते हो वैसे? यार मैं ऑडियो पास टाइम ना, OTT थोड़ा कम देखता हूँ. मैं सिर्फ फिल्में देखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ फिल्में देखता हूँ. तो इफ यू आस्क मी, आई हैव नॉट सीन अ शो कॉल्ड गेम ऑफ थ्रोन्स, आई हैव नॉट सीन अ शो कॉल्ड मनी हाइस्ट, आई हैव नॉट. They are supposed to be mind-blowing and world-altering. This is too much. That's what I'm saying. I haven't. You really should. The only show which I've seen is a show called Breaking Bad. And that too because my AD had given me those DVDs. DVDs, not even Blu-rays. DVDs of Breaking Bad. So I had seen Breaking Bad. मेरे पास तभी वो DVD प्लेयर था, मैं कभी ट्रैवल करता था उसमें हेडफोन लगा के देखता था, तो मेरे को शो अच्छा लगा था. बट वो 10-12 साल हो गया. बट मैं कोई नहीं, आई लाइक टू वॉच मूवीज. तो ये फिल्म गए मतलब हाँ. बड़े स्क्रीन के लिए बड़ा नहीं. पिक्चर, छोटी पिक्चर, बड़ी पिक्चर, सारी पिक्चर होनी, फिल्म होनी. अच्छा सीरीज वीरीज नहीं है, मेरे को नहीं जमता. ओके ठीक है, समझ गया.
समझ में नहीं आता है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी खत्म तो होगी नहीं. देखिए एक हुक पॉइंट पर लोग आके छोड़ेंगे, आपको नेक्स्ट सीजन देखना ही पड़ेगा. हाँ सही बात है. Of जो course. अच्छी बात है, OTT की वजह से बहुत लोगों को काम मिल गया यार. बहुत लोगों को काम मिल गया और बहुत अच्छा टैलेंट देखने को मिल रहा भी है. जेन्युइनली बहुत अच्छा टैलेंट देखने को मिल रहा है जो कहीं पे अनटैप्ड और अनयूज था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज. नाउ OTT हैज गिवन दैट, बट इट्स नॉट अ मैच फॉर सिनेमा. OTT इज नॉट अ मैच फॉर सिनेमा. इट्स लाइक OTT, I would say, is like you're ordering food from a restaurant. आते आते थोड़ा ठंडा हो जाता है, थोड़ा टेस्ट कम हो जाता है. आप गर्म करते हो, ओवन में सर्व करते हो और खाते हो, हाँ अच्छा था ये रेस्टोरेंट. बट गोइंग टू अ सिनेमा इज गोइंग टू द रेस्टोरेंट, ड्रेसिंग अप, सिटिंग देयर, दैट एटमोस्फियर, एंड द फूड इज ब्रॉट इन पाइप्ड हॉट, जस्ट कुक फॉर यू. दैट इज सिनेमा. वेरी वेल पुट, वेरी वेल पुट. वंडरफुल यार. जैसे मतलब जिस तरीके से बोला है, दैट्स क्वाइट. एंड आई ऑलवेज आस्क पीपल कि OTT या फिल्म्स, व्हाट डू दे प्रेफर. सो दैट्स वेरी वेल पुट नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट. बट अपॉर्चुनिटी बहुत मिल रही है लोगों को, विच इज़ वंडरफुल. एंड आई थिंक वी प्रीटी मच कवर्ड एवरीथिंग. Yeah. I think the only thing left to cover are these windows with curtains now. Thank you For what, Ankit? I want to thank you. Yeah. for making time for Time Out. No, largely thanks to you. Today, my mother, she saw me wear nice clothes and I had a bath. I live with my mom, Yeah. So, she says, oh, you're looking nice. I said, really? I said, when did that happen? I said, you need new glasses. She said, no, I need a new son. Very quick, yeah. The conversation me and my mom have now, oh shit, yeah, that can be like transcripted and it's a funny script, yeah. Yeah. We're like two Parsi people fighting at home, I know you have not done this in a while, and out of choice you're not doing it. हर कोई ना जब especially I do not belong in your world. I'm from What's my world? the film industry. I don't belong in the film industry. I don't. I'm telling you. I am an outsider who's an insider. I don't go to parties. I don't drink. I don't do many of the things which normally the paparazzi is associated with and a great high-flying lifestyle. I live with my mother. Yeah. I eat my food at 8 o'clock. I don't like to go for premieres. I don't like to go for award functions. I'm so not with it. Because, to be real, you need to have real people around you, real friends. Yeah. That's what I've had friends from my school, still my friends. Friends from my old colony, still my friends. That's very important. That's exactly वही मैं बोलने जा रहा था कि sometimes you make एक perception बना लेता है इंसान जब टीवी पे देख रहा होता है यार. तो I felt you were you when I was speaking to you right now. You're not trying to put up something that you want to showcase, which I can appreciate. No, but what is there to showcase? There is nothing to see. I have long hair which looks like a wig. The reason why I'm growing my hair is because I'm in my early 50s and most of my friends at my age, they're losing hair. Yeah. And they're doing transplants. And I have real hair. ये देखो असली है. ये देखो असली है. But it looks like a wig. So I'm not much to look at. सारे टाइम ऐसे ही होते हो आप. अब जो सच है वो सच है. आप अपने आप को कब तक झूठ बोल सकते हो? How long can you look at the mirror? Good looking. And where's the good looking? The mirror is not looking anymore. This is paining now. So, thank you, Sajid sir, for making time for Time Out. It was lovely to speak with you. And I can't wait to see your next presentation. That makes two of us. Ankit, thank you very much. God bless you and God bless you all. एंड जाने से पहले मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि अगर बातों में कोई भी गलत चीज़ बोल दिया तो उससे पहले से एडवांस बुकिंग में आप लोगों को सॉरी बोलूँ. किसी को ठेस पहुँचाने की ज़रूरत नहीं थी. और इस लड़के को सपोर्ट करो थोड़ा यार. इसका चैनल देखो, आप लोग सब्सक्राइब करो. बहुत अच्छा है. वो बेल आइकन दबाना, सब्सक्राइब करना. और क्योंकि अच्छे लोगों की जेन्युइनली ना बहुत आवश्यकता ज़रूरत है, ना सिर्फ यूट्यूब पे पर बहुत जगहों पे. और ये अच्छा लड़का है, अच्छा काम करता है. बातें जो ये कराता है लोगों से, मैंने देखे इसके कुछ एपिसोड्स मैंने देखे, बहुत अच्छे. दूसरे को भी जैसे बोला बात करने का मौका देता है, जो बहुत बड़ी बात है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. इट वाज अमेजिंग. गुड लक. गॉड ब्लेस. थैंक यू.